Hello students, hope you are quite well. Students, today we are going to discuss chapter number 14 from class 10th mathematics, that is statistics. As you know students, statistics, that is the field of mathematics. Here we can arrange the data, analyze the data and interpret the data by any suitable method. Okay, in class 10th students, we shall study about the three measures mean, mode and median for the group data. In previous class, in class 9th, we had learned about what is the ungrouped data, what is the group data. Grouped has two type of data, discrete data and continuous data. And mean, mode, median for ungrouped data. As you know, in the mean for the ungrouped data, mean is equal to sum of all observations divided by total number of observations. But in class 10th, how we can calculate the mean, mode, median for grouped data? So let's see. For the mean of group data, first of all, mean, for finding the mean, there are the three methods. One of them is direct method, second is assumed mean method and third is step deviation method. Students, तीनों मेथड्स का रोल एक ही है, मीन फाइंड आउट करना. बट जब भी डेटा हमारे पास स्मॉल होता है तो हम कोई डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं, लेकिन जब डेटा हमारा धीरे धीरे लार्ज होता जाता है, जब हमारी कैलकुलेशंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगती हैं, उस समय हम एज्यूम्ड मीन मेथड या थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. So now first of say direct method. Okay, in direct method students, see, let x1 x2 x3 dot xn be n class marks, यानी मिड वैल्यूज, यानी यहाँ जब डेटा ग्रुप्ड होता है तो ऑब्जर्वेशंस में डायरेक्टली नहीं मिलती है, हमें ग्रुपिंग मिलती है. तो ग्रुप्ड में हमारे पास क्लास मार्क या मिड वैल्यू के सेंट्रिक हम मीन फाइंड आउट करते हैं. So let x1 x2 x3 dot xn be n class marks, mid values of class intervals, and f1 f2 f3 dot fn be their corresponding frequencies. Then you know mean is equal to what? Sum of all observations. तो sum of कैसे मिलेंगे? Sum of product of frequency and their corresponding mid value. Okay, यानी f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus dot fn xn and divide by total number of observations, and here the total number of observation is sum of frequency. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x bar यानी mean is equal to sigma that is the Greek word representing sum, sigma fi xi, where I is going from 1 to n, divided by sigma fi. Okay, here sigma fi is what? n यानी total number of observations या total frequency. So this method is called direct method. Okay, when we use this method, when the data is small. Okay, and for finding the class mark या mid value, we use the formula lower class limit plus upper class limit divided by 2. Now we are going to discuss one example related to direct method. ठीक है. Here's the question is that find the mean of the following data. Data is given in grouped frequency distribution, class interval, second is frequency. Class interval यानी grouping is there 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18 and so on, and here frequency 7, 5, 10, 12 and 6. So total is 40. आगे क्या करेंगे? For finding the mean, we can insert one more column, that is for the xi यानी mid values. कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल मींस 0 plus 6 divided by 2 यानी 3, 6 plus 12 divided by 2 यानी 9, फिर 15, then 21, then 27. Again one more column is there, that is
FI XI, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू. सो दिस वन was 7 3 जा 21, 9 5 जा 45, 15 10 जा 150, 12 1 जा 12, 1 carry, 12 2 जा 24, 125, 6 7 जा 42, 4 carry, 6 2 जा 12, 4 60. Total, because the sum, we need the sum here. The sum is 2 2 4 4 5 9 1 10 0. Carry 1 2 1 3 3 4 7 7 5 12 12 5 17 17 or 6 23. 2 carry 2 1 3 2 5 1 6. So this one is the complete table for the direct method. Here students see sigma fi and sum of frequency is what 40 and sum of fi xi product of fi xi that is 630. Now mean for from the direct method, and by direct method x bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi. That means 630 divided by 40, इधर से 0 कैंसिल कर दें तो 4 बन जा 4, 4 5 जा फिर 3 बचेगा तो 4 7 जा और 5, यानी x बार यानी मीन जो मिला. सो मीन यानी x बार इज इक्वल टू 15.75. That is your answer. For mean, next method is assumed mean method. Yeah, shortcut method. As you know कि मैंने भी बताया कि mean 3 मेथड से फाइंड आउट करेंगे. जब डेटा स्मॉल यानी एक ही है तो हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, अदरवाइज हम आगे assumed mean method और step deviation method लगा सकते हैं. So assumed mean method, that is also called the shortcut method. Okay, so for in assumed mean method, first we choose one among the xi यानी क्लास मार्क्स में से वन, ओनली कोई वन, उसको हम क्या कहेंगे assumed mean a कंसीडर करेंगे. ओके, एंड देन डेविएशन यानी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि xi एंड a का डिफरेंस, ऑल द di's यानी ऑल द ऑब्जर्वेशंस का. ठीक है, देन मीन कैसे डिफाइन करेंगे? मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di upon sigma fi, where summation is going on from where, from 1 to n. That is the assumed mean method. Okay, and third method is step deviation method. और भी कैलकुलेशन हम अगर सिंपलीफाई करना चाहते हैं, फॉर सिंपलीफाई कैलकुलेशन ऑफ द मीन बाय टेकिंग कोडेड मीन. स्टूडेंट्स कोडेड मीन क्या होता है? ui फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ di फाइंड आउट करते थे डेविएशन, वैसे यहाँ पे ui फाइंड आउट करेंगे. ui means di upon h, and di is what? xi minus a upon h. h that is the class size. Then mean का फार्मूला क्या हो जाएगा? mean is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. ah इसके साथ मल्टीप्लाई है, and summation is going from I is equal to 1 to n. h that is the class size, you know, data is grouped, class size यहाँ पर होगी. Okay, and students, one remembering point is that the mean obtained by all the methods is same. यानी चाहे इससे आप मीन फाइंड आउट करें, चाहे इससे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से, जो आपका मीन आएगा उसका आंसर हमेशा सेम है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस one example related to it. Okay, see. Since let's see this example. Find the mean daily wages of the workers of the factory. So table is this: daily wages of the workers and number of workers is given. That is the what? Grouped frequency distribution table. Daily wages from 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 550, 550 to 600, and this is the frequency. तो अब क्या करेंगे? आगे सबसे पहले हम लोग मिड वैल्यू, क्योंकि क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं तो मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. मिड वैल्यूज यानी x फाइंड
एक्सरसाइज यानी एवरेज, एवरेज किसका, इनका, तो 500 प्लस 520 इसका एवरेज करेंगे हम लोग तो आएगा 510, फिर 530, फिर 550, फिर 570 एंड फिर 590। ओके, अब क्योंकि हम एज्यूमिंग मेथड का एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इन एक्सरसाइज में से एक कोई ऐसी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन कंसीडर कर लेंगे। वैसे मोस्टली क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू कंसीडर, यहाँ पर देखें तो 2 3 4 5 5 है तो यहाँ पे हम मिडिल वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। ठीक, अगर इवन में है तो हम कोई ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा उससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, अगर ये एक्सरसाइज ले लिया तो हम क्या ये केवल कॉलम इंसर्ट करेंगे di, दैट मींस xi माइनस a, यानी एज्यूम मीन से सबका डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करेंगे 550 से 510 का, तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 40, माइनस का 20 एंड 0 एंड 20 एंड 40। ठीक, अगली टेबल, क्योंकि हमारे पास एज्यूम मीन मेथड में fi di निकालना होता है तो लास्ट एक और टेबल लेंगे हम लोग, क्या fi di। ठीक है, fi into di टेबल, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं, दिस वन इज द di, दिस वन इज द fi। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स, तो 12 4 जा माइनस 480। ठीक है, 14 2 जा यानी माइनस का 280 एंड दिस वन बिकम्स 0, 6 2 जा यानी 120 एंड 40 10 जा यानी 400। अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, 0 8 8 16 1 कैरी 4 2 6 1 7 माइनस 7 16 है और प्लस का कितना है 0 2 और 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 0 4 और 2, वो भी किसका, माइनस का, तो सिग्मा fi इज व्हाट माइनस 240। ठीक, सो टेबल कंप्लीट फॉर एज्यूमिंग मेथड, टेबल कंप्लीट। यहाँ पर देखिए हियर सिग्मा fi दैट इज 50 एंड सिग्मा fi di दैट इज व्हाट माइनस 240। ओके, एंड एज्यूम मीन हमने क्या लिया, a लिया है हम लोगों ने 550। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड x बार यानी मीन इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ओके, तो x बार निकालना है हमें, a दिया गया है हमारे पास 550 प्लस सिग्मा fi di यानी माइनस 240 डिवाइड बाई 50, अगर 50 से डिवाइड करेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा 550 माइनस 240 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 550 माइनस 24 डिवाइड बाई 5 यानी 5 4 जा और 5 8 जा, यानी 4.8 अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 545.2 और ये हमारा हुआ x बार यानी मीन। सो मीन इज इक्वल टू रुपीज, मीन डेली वेजेस था तो रुपीज में हम कर लेंगे 545.2 दैट इज आंसर। सी this is one more example is there to find out the missing frequencies when mean is given and इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो हमारी दोनों प्रॉब्लम हो जाएगी। एक स्टेप डेविएशन मेथड से हम कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं उसमें उससे रिलेटेड रहेगा और साथ में मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन इज दैट इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 91 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y। x एंड y यहां पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो वेरिएबल के फॉर्म में है उनको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेटा इज देयर, तो डेटा किस फॉर्म में गुड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, क्लास इंटरवल दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई, तो अगला जस्ट हमारा कॉलम क्या होगा, हमारा अगला कॉलम होगा xi यानी मिड वैल्यू, xi यानी मिड वैल्यू तो 0 प्लस 30 यानी 15 मिड वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी 45 मिड वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 75 मिड वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे
105 हो जाएगी और यहाँ पे 135 हो जाएगी और यहाँ पे स्टूडेंट्स 165 हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, DI फाइंड आउट करेंगे। DI क्योंकि डेटा हमारे पास थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, डायरेक्टली प्रोडक्ट करने में थोड़ा सा हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा और गलतियां होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो स्टूडेंट्स DI निकालेंगे, DI xi माइनस a होता है। अब a हमारे पास क्या है, तो a हमने कहा था अभी कि कुछ भी हम कोई भी xi की वैल्यू ले सकते हैं, मोस्टली मिडिल के पास रहते हैं। तो अगर हम 75, ये ऑड नंबर तो है ना, इवन नंबर है 6, तो 6 पे हम 75 ले रहे हैं या 105 ले रहे हैं, तो 75 लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, 75 अगर एज्यूमिंग ले लिया तो DI जब निकालेंगे तो 15 माइनस 75 यानी माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये बेटा प्लस का 30 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 60 हो जाएगा और ये प्लस का 90 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्योंकि हम अभी और कैलकुलेशन को अगर छोटी करना चाहते हैं, स्टेप डेविएशन यानी आ रहे हैं सिंपलीफाई मोड, तो उस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ कोडेड मीन यानी UI निकालना होता है। UI का मतलब होता है DI/H। H आपकी क्लास की साइज है, क्लास साइज है और यहाँ पर कह सकते हैं एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो H यानी 30 से अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लास साइज कितना है 30 माइनस 0 30, 60 माइनस 30 30, तो 30 से जब हम डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखिए डेटा कितना छोटा हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इससे हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है। तो अगली टेबल क्या होगी बेटा, कोडेड मीन को यानी UI और FI यानी FI into UI। दिस वन इज द UI, दिस वन इज द FI। प्रोडक्ट किया -24 हो गया, -21 हो गया, एंड x into 0 तो 0 ही रहेगा, 52 into 1 यानी 52 रहेगा, y into 2 यानी 2y हो जाएगा और 11 into 3 यानी 33 हो जाएगा। इनका भी सम करें क्योंकि हमें सिग्मा FI UI चाहिए होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, तो सम के लिए नेगेटिव नंबर है 415 और 22 -45 है और यहाँ से देखें तो 235 और 538। अच्छा 2y को तो 2y ये वेरिएबल है, इसको तो इसमें ऐसे ही नहीं ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ गया प्लस का आ जाएगा बेटा 20। ठीक, प्लस साइन समझते हैं क्या, बाकी 40 के साथ ये 2y भी ऐड होगा, तो यहाँ पर जो सम आया सिग्मा FI UI ये 2y प्लस 40 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए टेबल कंप्लीट हो गई। फॉर स्टेप डेविएशन मेथड एक कॉलम नंबर हमारे पास इंसर्ट हुआ था क्या, UI यानी DI/H, जिससे डेटा और छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या हमारे पास गिवन है। यहाँ हमारे पास हमने एज्यूम मीन लिया है a कितना है 75। अच्छा दूसरी चीज सिग्मा FI दिया गया था बेटा 150 और सिग्मा FI UI हमने निकाला है, ये कितना है 2y प्लस 40। और एक चीज क्वेश्चन में भी दी गई थी 91 क्या था, मीन दिया गया था, क्योंकि हमें यहाँ xy निकालना है, जब भी हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो मीन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ x बार या और h कितना है, h हमने 30 लिया है और x बार जो गिवन है ये कितना दिया गया है 91, यानी हर एक चीज हमें मिल गई जो फार्मूले में यूज करना है और फाइंड आउट करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। नाउ बाय स्टेप डेविएशन, नाउ बाय स्टेप डेविएशन मेथड, अगर स्टेप डेविएशन मेथड में आ गए तो फार्मूला पहले तैयार होना चाहिए हमें। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI और इनटू में h। Put here all the values, x bar is what 91 यानी मीन जो दिया गया है वो 91, a हमने लिया है 75, सिग्मा FI UI हमने फाइंड आउट किया है 2y प्लस 40। ठीक है, अपॉन FI यानी फ्रीक्वेंसी का सब कितना है 150 और इनटू मैंने किया h यानी 30 से, तो 30 से इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये 75 इधर ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 91 माइनस 75 बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2y प्लस 40 डिवाइड बाई 5। इस 5 को भी हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लें तो इनटू में हो जाएगा और ये कितना आएगा 91 से 75 जाएगा तो 16, यानी 16 into 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 40। ठीक है, ये 80
2y प्लस 40। ठीक, यहाँ से ट्रांसपोज करें तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 40, दैट मीन्स 2y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू कितना है 20। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू लेंगे अभी, क्योंकि हमें दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी, टू फ्रीक्वेंसी आ गया x एंड y। अच्छा देखिए, टू फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी तो हमारे पास कंफर्म है यहाँ टोटल जरूर दिया गया, क्योंकि टू एरर हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जो हमारे पास टू इक्वेशंस होंगी। और सपोज केवल एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती तो हमारे पास ये यहाँ नहीं दिया गया होता, केवल यहाँ से हम एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर देते। तो अभी हमें y मिला है, अभी हमें x और फाइंड आउट करना है। तो x के लिए हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म होगी बेटा कहाँ से, फ्रीक्वेंसी के सम से, सिग्मा fi। तो सिग्मा fi अब यहाँ पर आए तो क्या होगा ये, एंड सिग्मा fi यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, ये कितना दिया गया है 150। और टोटल फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से देखें सम करें तो सम करेंगे तो क्या लिखेंगे 12 प्लस 21 प्लस x प्लस 52 प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं सॉल्व करके जरा, ये कितना हो जाएगा देखते हैं 2 1 3 3 2 5 1 6 6 एंड 1 2 3 3 5 8 1 9 96 और साथ में x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 150। यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा x प्लस y इज इक्वल टू कितना 150 माइनस 96 यानी 54 x प्लस y। अब देखिए x प्लस y 54 है एंड y आपको मिला है 20, तो यहाँ अगर यूज करें y इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 20 इज इक्वल टू 54 और यहाँ इंट में डाल दीजिए सिंस y इक्वल टू क्या है 20, इसको यूज किया तो x कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 54 माइनस 20 यानी 34। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होगी x इक्वल टू 34 और y इक्वल टू कितना 20, और यही हमारे पास आंसर है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और यहाँ हमने दोनों तरीके के लिए एक इसके डेरिवेशन को भी वर्कआउट ले लिया और मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लिया। सी दिस स्टूडेंट्स।